Hello students, today I am going to deliver lecture on the topic of one-shot learning. The one-shot learning actually removes the drawbacks of the convolutional neural network CNN. As we know that deep CNN is a state-of-the-art method for the image classification, but there is a drawback of the CNN that it requires a lot of training samples for the classification. And another drawback of the CNN is that it cannot tackle the large number of classes. If number of classes are huge, then the accuracy of the CNN will be very low. Okay, so यहाँ पे जो रियल वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पर कि हम फेस डिटेक्शन की जहाँ ज़रूरत होती है, ठीक है, पर हम वहाँ पर CNN यूज़ नहीं कर सकते हैं एज वहाँ पर रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, वहाँ पे नए लोग बार बार ऑर्गेनाइजेशन को जो है ज्वाइन करते रहते हैं। तो हम हर एक न्यू एम्प्लॉय के आने पर हम CNN को बार बार ट्रेनिंग परफॉर्म नहीं करवा सकते, क्योंकि इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। ओके, और हर एक एम्प्लॉय के बहुत सारे सैम्पल्स लेना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो in such kind of organization we cannot use the CNN for the face detection. Okay, so इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, वन शॉट लर्निंग। ओके, तो वन शॉट लर्निंग रिक्वायर्स वेरी फ्यू एग्जांपल्स फॉर लर्निंग. ओके, even on single training example it can learn a class. Okay, so one-shot learning doesn't learn the classification function. Instead of learning the classification function, it learns the similarity function. Okay, here it is the Seminus neural network which uses the one-shot learning. Okay, the Seminus neural network actually takes a pair of images as input and generates a prediction, a similarity score. Okay, on basis of this similarity score, it learns and performs the one-shot learning. How it learns, that let's see in the next slide. Okay, so this is the Seminus neural network. Okay, it consists of actually a CNN. Okay, so here we will provide two images. Okay, to the convolutional neural network. Here these two convolutional neural network are actually the same, exactly same convolutional neural network. Okay, so let's say कि एक कोई एम्प्लॉय जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है. ओके, तो हम उसके एक इमेज को एज अ टेस्ट इमेज ले लेंगे, और जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के, उसको हम एज अ रेफरेंस इमेज ले लेंगे. देन नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट द we will provide these two reference images to the convolutional neural network. We know the the output of the CNN will be a feature vector. Okay, then we will calculate the difference of these two feature vector. Okay, on basis of difference the network will predict a similarity score. If this feature vector are similar, then the predicted score will be the 1, and if it is not similar, then the feature vector tends to 0. Okay. ओके, सो हमारा यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है करेक्ट प्रिडिक्शन करना, है ना. करेक्ट प्रिडिक्शन तभी हो सकता है जब ये जो नेटवर्क है, ये जो है हर एक इमेज का जो है एक जो उसके अंदर जो क्लास है उसको करेक्टली जो है हिडन रिप्रेजेंटेशन कर सके, है ना, और इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सके कि जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनका रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट क्लासेस का जो फीचर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा हो, डिफरेंट हो, है ना. अगर वो उसने इस चीज़ को लर्न कर लिया तो यहाँ पे जो स्कोर प्रेडिक्ट करेगा वो कैसा होगा, सही होगा, है ना. तो अब ये टेस्ट इमेजेस जो नया एम्प्लॉय है और ये रेफरेंस इमेजेस जो प्रीवियसली जो ज्वाइन कर चुके हैं. ओके, सो आउटपुट में जो यहाँ पे स्कोर आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, टेंड्स टू 0 आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, डिफरेंट क्लासेस, है ना, क्योंकि जो इमेजेस हैं दो डिफरेंट पर्सन की हैं, है ना. तो आउटपुट स्कोर कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए. बट अगर ये टेंड्स टू 0 नहीं आता है तो क्या होगा, एरर जनरेट होगा. ड्यू टू दिस एरर अगेन द Seminus neural network will learn to represent the test image in such a way that the feature vector of this image will become the different from all other feature vectors of the reference images, है ना. तो इस तरीके से लर्न करेगा इस न्यूरल नेटवर्क कि जो इसका इस जो टेस्टिंग इमेज का जो फीचर वेक्टर वो कैसा हो जाए, डिफरेंट हो जाए दूसरी रेफरेंस इमेजेस के फीचर वेक्टर से, है ना. दिस इज़ द अनदर यूज केस ऑफ द वन शॉट लर्निंग. दिस इज़ द OmniCloud data set. Here we have taken a lot of
a lot of languages has been considered and their alphabets. Okay. So each alphabet is correspond to a single class. Okay, in this data set there are 1623 different classes, and each class is having only 20 images, 20 samples. Again, here we cannot use the CNN as the number of classes very high and the number of samples very low. Okay, so again here we will use the one-shot learning. And one-shot learning, as I have told you that this is the one supervised learning. So again here we will provide a data set having the input and the output. Okay, so input is a pair of images and output is a score, है ना. So pair of images if both pair of images belongs to the same class, then output level will be the 1. If both pair of images belongs to a different class, then the output level will be 0. Let's see how it works. जैसा कि मैंने आपको अभी डेटा सेट दिखाया यहाँ पर, है ना. मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई भी 2 इमेजेस को चूज़ करूँगा एज अ पैर, है ना. अगर ये दोनों सेम क्लास को बिलोंग करते हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे चा और चा, ये दोनों सेम क्लास को बिलोंग करते हैं, तो आउटपुट लेवल कैसा होगा, 1 होगा. यहाँ पे दोनों डिफरेंट क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, तो आउटपुट लेवल कैसा होगा, यहाँ पे 0 होगा, है ना. तो इस तरीके से आप डेटा सेट बनाओगे. रैंडमली चूज़ करके आप क्या करोगे, अपने इस ओमनीग्लोट डेटा सेट से मैंने क्या किया, यहाँ पे रैंडमली चूज़ किए इमेजेस को, और अगर वो दोनों सेम क्लास को बिलोंग कर रहे हैं तो 1 आउटपुट लेवल रखा है, और दोनों अगर डिफरेंट क्लास को बिलोंग कर रहे हैं तो आउटपुट लेवल 0 रखा है. इस तरीके से डेटा सेट कंस्ट्रक्ट करेंगे, और उस डेटा सेट को हम किसको देंगे, साइमल्टेनियस न्यूरल नेटवर्क को देंगे. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही दोनों जो हमने अभी जो डेटा सेट बनाया तो है उसमें दो इमेजेस हैं, है ना, इनपुट में. तो ये दोनों इमेजेस में यहाँ पे एज ए इनपुट दूंगा. ठीक है, तो अब अगर CNN क्या करेगा, फीचर वेक्टर जनरेट करेगा, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेगा, और एक आउटपुट में एक प्रेडिक्शन स्कोर कैलकुलेट करेगा. ओके, सो अगर आउटपुट लेवल यहाँ पे कैसा है, आउटपुट लेवल अगर 1 है, आउटपुट लेवल 1 है मतलब कि दोनों कैसे हैं, दोनों सेम क्लास को बिलोंग कर रहे हैं. बट अगर ये जो प्रिडिक्शन स्कोर आ रहा है ये अगर 1 के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, एरर है. तो अगेन साइमल्टेनियस न्यूरल नेटवर्क क्या करेगा, लर्न करेगा. इस तरीके से लर्न करेगा कि ये जो दोनों फीचर वेक्टर जो आउटपुट में आ रहे हैं वो कैसे हो जाएं, सिमिलर हो जाएं. ओके, दूसरा केस क्या हो सकता है, जब ये दोनों इनपुट इमेजेस दे रहा हूँ, ये दोनों कैसे हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट क्लासेस को बिलोंग कर सकते हैं. तो यहाँ पे आउटपुट लेवल जो होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस इनपुट पेयर के कॉरस्पॉन्डिंग वो कैसा होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट क्लास को बिलोंग कर रहे हैं. ओके, सो अब यहाँ पे अगेन मैं CNN को दूंगा, तो यहाँ पे फीचर वेक्टर जनरेट होगा. हो सकता है कि ड्यू टू इम्प्रॉपर लर्निंग कि ये फीचर वेक्टर थोड़े से सिमिलर हो सकते हैं, है ना. तो यहाँ पे तो आउटपुट लेवल कैसा है, जो मेरे को चाहिए वो कैसा है, 0 है. पर हो सकता है ये 0 से बड़ा हो जो प्रिडिक्शन स्कोर आ रहा है, तो अगेन क्या होगा, यहाँ पे एरर होगा. तो फिर से अगेन क्या करेगा, न्यूरल नेटवर्क क्या करेगा, लर्न करेगा. इस तरीके से लर्न करेगा कि ये दोनों जो फीचर वेक्टर हैं वो कैसे हो जाए, बिल्कुल डिफरेंट हो जाए, है ना. तो दिस इज़ हाउ द वन शॉट लर्निंग वर्क्स. थैंक यू.